भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। आज हम श्रीमद् भागवतम की दूसरा स्कंद 9वां अध्याय और दूसरा नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुरूपा इवा भाति मायाया बहुरूपया ब्रह्मणो गुणेशस्य मामाहम् इति मन्यते। Translation: the illusion living entity appears in so many forms offered by the external energy of the Lord. While enjoying in the modes of the material nature, the encaged living entity misconceives, thinking in terms of I and mine, purported by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The different forms of living entities are different dresses offered by the illusory external energy of the Lord. According to the modes of the nature, the living being desires to enjoy. The external material energy is represented by her three modes, namely goodness, passion and ignorance. So even in the material nature, there is a chance of an independent choice by the living entity, and according to his choice, the material energy offers him different varieties of material bodies. There are 9 lakh varieties of material bodies in water, 2 lakh vegetable bodies, 11 lakh worms and reptiles, 10 lakh forms of birds, 30 lakh different bodies of beasts, and 4 lakh human forms. Altogether, there are 84 lakh varieties of bodies in different planets of the universe. And the living entity is traveling by so many transmigrations according to the different modes of enjoying spirit within himself. Even if one particular body, the living entity changes from childhood to boyhood, from boyhood to youth, from youth to old age, and from old age to another body created by his own action. The living entity creates his own body by his personal desires, and the external energy of the Lord supplies him the exact form by which he can enjoy his desires to the fullest extent. The tiger wanted to enjoy the blood of another animal, and therefore by the grace of the Lord, the material energy supplied him the body of the tiger with facilities for enjoying blood from another animal. Similarly, a living entity desiring to get the body of a demigod in a higher planet can also get it by the grace of the Lord. And if he is intelligent enough, he can desire to get a spiritual body to enjoy the company of the Lord, and he will get it. So the minute freedom of the living entity can be fully utilized, and the Lord is so kind that He will award the living entity the same type of body he desires. The living entity desiring is like dreaming of a golden mountain. A person knows what a mountain is, and he knows also what gold is. Out of his desire only he dreams of a golden mountain, and when the dream is over, he sees something else in his presence. He finds in his awakened state that there is neither gold nor a mountain, and what to speak of a golden mountain. The different positions of the living entities in the material world under the multifarious manifestations of bodies are due to the misconception of mine and I. The karmi thinks of this world as mine, and the jnani thinks I am everything. The whole material conception of politics, sociology, philanthropy, altruism, etc., conceived by the conditioned souls, is on the basis of the misconceived I and mine, which are products of a strong desire to enjoy material life. Identification with the body
than the place where the bodies obtained under the different conception of socialism, nationalism, family affection, and so on and so forth is all due to the forgetfulness of the real nature of the living entity, and the whole misconception of the bewildered living entity can be removed by the association of Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit, as all this is explained in the Srimad Bhagavatam. चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निगतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। बहुरूपा इवा भाति मायाया बहुरूपया ब्रह्ममानो गुणेशस्य ममापहं इति मन्यते। हरे कृष्ण। मैं सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में दिलपूर्वक स्वागत करता हूँ और आपके सभी लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये अवसर मिला है हमें सभी लोगों को इस कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसे मैं आगमन कर रहा था यहाँ पे और जब ये गौर आरती हो रहा था तो मुझे प्रभुपाद की वर्डिक याद आता है। जब उन्होंने ये कृष्ण भक्ति आंदोलन शुरुआत किए थे न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद एक ही जगह पे रुके नहीं, उनको तो
इन लोगों ने सोचा कि स्वामी जी यहाँ पे रुकेंगे, बस ये छोटा सा परिवार प्रभुपाद जी और हम हमेशा रहेंगे। एक दिन अकस्मात प्रभुपाद बोले नाउ आई हैव टू लीव। वह स्वामी जी वहां पे मुकुंदा और जानकी ने सैन फ्रांसिस्को में सेंटर चालू किया, मैं चले जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने जो तुमको ट्रेनिंग दिया करते रहो, सुबह उठो, मंगल आरती करो, उसके बाद जाप करो, उसके बाद तुलसी आरती, नरसिंह प्रेयर, और सुबह के टाइम भागवतम उठाओ, और मैंने जो भागवतम दिया है उसको ले लो। कोई व्यक्ति भी बैठ के चर्चा कर सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि ज्ञानवान होना चाहिए। और शाम को वैसे ही संध्या आरती करो और भगवद गीता ले लो और उसके बारे में चर्चा करो। तो इट इज नॉट दैट कोई ऐसा महान व्यक्ति होना चाहिए। इफ जस्ट टेक माई बुक्स द सेंटर विल कृष्ण कॉन्शियस विल गो। तो मैं सोच रहा था ये इट रिमाइंड्स ऑफ द विंटेज डेज ऑफ श्रील प्रभुपाद। कैसे? क्योंकि इतना सा छोटा मंदिर एंड अल्टीमेटली सभी भक्तों का एक ही उद्देश्य है, जस्ट डूइंग द सेम थिंग व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज सेड। Mitil propose make the Mridam, Surat shows to Kirtan, Prabhuji Sridham, Srinivas was arranging everything under the guidance. So a simple nature, Krishna consciousness is simple for the simple. तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा कि आप लोग आके मुझे ये अवसर दे रहे हैं ताकि मैं भी शुद्धिकरण करूं। तो आज का ये जो 9वां अध्याय किसी को पता है? बिकॉज डिले आपसे नहीं है, मैं एक मंगलवार नहीं आया था, सो नो प्रॉब्लम। कंटिन्यूटी के लिए मैं बताता हूँ कि अभी श्री परीक्षित महाराज के जो प्रश्न होने के बाद सुखदेव गोस्वामी एक ही प्रश्न के उत्तर दे रहे। तो आज के इसमें सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा ये बता रहे हैं। वो बताते हैं कि ये भौतिक दुनिया का मूल कारण क्या है। What is the root cause of this material world? ये भौतिक दुनिया बोलते ना बनने के लिए what is the कारण? क्योंकि सबको पता है आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया है। भौतिक दुनिया भगवान हम जैसे बद्ध जीव के लिए बनाते हैं, पर बद्ध जीव का क्या मूल कारण है जिसकी वजह से भौतिक दुनिया बना हुआ है? Anyone? Any answer? What is the root cause? I am the enjoyer. Sridhar Krishna hit the ice bull of the root cause. सबसे बड़ा मूल कारण है हमारा मिथ्या अहंकार, I, me and mine। वैसे लोग के लिए भौतिक दुनिया बना हुआ है। Material, one who identifies himself with the matter, then he is placed in the material world। जो अपना शरीर के साथ जो पहचान करता है उसको भौतिक दुनिया में, और जो व्यक्ति अपना जीवात्मा के साथ संबंध उसको कहां पे रखा जाता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इसलिए मूल कारण भौतिक का है। जो व्यक्ति अपना ये पंचभूत महाशरीर इसके साथ आइडेंटिफाई करता है, आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, आई एम द एंजॉयर, मैं खुश रहना चाहता हूं, आई शुड बी कंफर्टेबल, व्हाट मेक्स मी हैप्पी दैट इज माई लाइफ। ऐसे लोग को इस भौतिक दुनिया में डाला जाता है। इसलिए सबसे बड़ा रूट कॉज, मूल कारण है हम अपने आप को शरीर समझना, और अपने मिथ्या अहंकार है ना, अहंकार आई, मी एंड माई, उसके वजह से हमें इस जगह पे डाला गया है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं जब वो व्यक्ति को रियलाइजेशन, उसको बताते हैं कि अंतरात्मा से पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। सभी जो प्रॉब्लम्स है
सिर्फ ये शरीर के साथ संबंधित है, इसमें से निकल रहा है। जब जो व्यक्ति को पता चलता है आई एम नॉट दिस बॉडी, रियलाइजेशन। इसलिए हम ये जो भक्ति कर रहे हैं इसका हाईएस्ट पर्पस क्या है? इसलिए प्रभुपाद बता दे द बिगेस्ट अनर्थ इज टू कंसिडर योरसेल्फ एज अ बॉडी। अपने आप को शरीर समझना ये सबसे बड़ा अनर्थ है। और ये जो भक्ति के मार्ग कर रहे हैं ये अनर्थ से निवारण होने के लिए हम लोग ये भक्ति कर रहे हैं। एक्चुअली हम देखा जाए तो कोई बोलेंगे कि सुखदेव महाराज जैसे ये तो यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। ये साइंस और सेल्फ जर्नी में ये पहला चैप्टर है, पहला 6 डे कोर्स में। वही आपको वापस दोहराए। सुखदेव गोस्वामी जी को भागवतम कथा बोलना चाहिए। ये सब क्या बोल रहे बोलते ना, हम इस भौतिक दुनिया में बोलते ना रह के ना हमारा बुद्धि बोलते एकदम अल्टीमेटली इट हैज बिकम मंदमती हो चुका है। उसको वापस याद करवाना पड़ता है। देखिए कलयुग में बोलते ना मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, और ये भौतिक दुनिया में है ही, पर कलयुग में तो और लोगों को एक बार याद नहीं रहता है, उसको वापस दोहराना पड़ता है। कुछ हैबिट फॉर्म करने के लिए एक उसको वापस करना पड़ता है। डू इट, कीप ऑन डूइंग, तभी वो ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा लोहार होता है ना, लोहार जो गोल्ड, उसको क्या बोलते हैं लोहार, जो लोहा को कुछ नहीं करता, उसके पास बड़ा हैमर रहता है और वो कितना मारना पड़ता है उसको एक शेप लेके आना है तो ब्लैक स्मिथ या जो भी मालूम की उस आयन उसको गरम करके उसको कोई शेप लेकर बहुत मारना पड़ता है तो तभी एक रूप लेता है। उसी तरह कलयुग में हमारे ये जो मंदमती को याद करवाने के लिए रोज हमें याद करवाना पड़ता है। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। ये नींद है, नित्य अहंकार कारण है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसकी एंटायर यहाँ पे परपट में प्रभुपाद और सुखदेव गोस्वामी इसको बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं, क्योंकि पता थे कि ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन इज वेरी दुर्लभ। 84 लाख योनि में जाके हम लोग को मनुष्य जन्म मिलता है। देखिए ये रियलाइजेशन होने के लिए ना हमेशा हमें, जैसे अगर आप बोलेंगे प्रभु जी आप और कुछ तो बोलो, ये तो मैंने सुना है, हाँ ठीक है मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है 84 लाख में, पर सुनना और रियलाइजेशन करना में बहुत फर्क है। सुनते तो हम लोग रोज सुनते, बट हैव यू रियलाइज्ड हाउ मच यू वैल्यूज ह्यूमन लाइफ? सुनना तो रोज बोलते ना ABCD के जैसे हम रोज सुनते, बट हाउ मच अ पर्सन रियलाइज्ड? इन लोग जो बताते हैं हमारे संत महापुरुष लोग, जैसे पुरंदरदास एक भजन बताते, मानव जन्म यष्टु दोड्डदो मानव जन्म, बोलते हैं मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। और संत तुकाराम महाराज कितने अभंग लिखे हैं, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, कितना जन्म के बाद में। ये सुनना और समझने में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज बोल सकते थे, ये तो मेरे दादाजी लोग ने बोला, यू गो हेड फास्ट फॉरवर्ड, नो फास्ट फॉरवर्ड, दिस इज कृष्ण कथा। जो व्यक्ति ये रियलाइज कर देता है कि मैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, उसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर एक बहुत अच्छा ये वर्ड बताते हैं। एक बरपट में आपने सुना होगा, ये क्यों हमें इतना शरीर मिलता है? 84 लाख योनि में हम लोग सब सुनते, 84 लाख 1000 स्पीशीज में हमको 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है। ये क्यों हमें शरीर मिल रहा है? वाई यू आर फोर्स्ड? अब आप सब कुछ क्यों 84 लाख में मनुष्य जीवन होने के बाद मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनि कौन देता है, क्यों देता है? Any answers? Why living entity is forced to take 84 lakh thousand species? 84 लाख योनि में क्यों जाना पड़ता है?
मैं आस्तिक लोग से पूछता हूँ, मतलब जो विश्वास करते शास्त्र, नास्तिक लोग बोलेंगे भाई साहब किसने देखा है, मरने के बाद आपने देखा है, और कोई जाता है उधर से आता है, ये तुम्हारे काल्पनिक विचार है। इसलिए मैं स्पेसिफाई किया, आस्तिक लोग जो शास्त्र के ऊपर कंप्लीट विश्वास रखते, जो हमारा गाइड है, हमें पता है कि शास्त्र का उल्लेख कभी झूठ नहीं होता, वैसे लोग से पूछा जाता है। नास्तिक लोग तो बोलते ना वो ऑस्ट्रिच के जैसे, ये इज ऑल ब्लाइंड फेथ। इसलिए मैं जो आस्तिक लोग से पूछा हूं, व्हाई द लिविंग एंटिटी इज फोर्स्ड टू टेक 84 लाख थाउजेंड स्पीशीज, 84 लाख में क्यों डाला जाता है, व्हाई? Because of our independence. बिकॉज ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, हमारे स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता है? To desire. टू डिजायर, इच्छा रखने का। एनी अदर आंसर्स? किसी का कोई उत्तर? पास्ट कर्म, पहले के कर्म के वैसे। वेरी नाइस। प्रभुपाद बताते हैं, आप लोग ने देखा होगा कभी वस्त्रालय या कोई दुकान में जाते हैं ना, तो आप जाने के बाद वो जो काउंटर के पीछे खड़ा होता है उसको पता चलता है आपको क्या चाहिए, वो पता, हाँ सर, माइंड रीडिंग किया तो पता चलेगा, पर वो क्या करता है, वो क्या बताए, बोलिए सर हाउ कैन आई सर्व यू। तो हम क्या करते, हमारा चॉइस के हिसाब से वो देता है ना। अगर हम खड़े रहेंगे, हम बोलेंगे, वो जाके हमको, हम लोग वस्त्रालय में खड़े, उसने उठा के लुंगी दिया, तो बोले अरे तुमको मैंने पूछा नहीं, तुम कुछ नहीं दिया। नहीं मैं जान लिया नहीं, आई वॉन्ट जीन्स पैंट, ओके तो जीन्स पैंट का वेराइटी, आई वॉन्ट टी शर्ट, तो हमारे टी शर्ट देता है, आई वॉन्ट। जिस तरह हमारा चॉइस है उस तरह वो लाके हमको वस्त्र प्रदान करता है। उसी तरह मैंने पूछा 84 लाख युवनी में किसने और क्यों डाला है हमको, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर में ना, हम लोग जाके सामने खड़े होते, सर आई वॉन्ट टू स्लीप एकदम फॉर एवर। हमने भौतिक इच्छा से पूछा, मुझे सोना है, ओके, तुमने पूछा तो लॉ ऑफ नेचर तुम्हें वो पोलर बेयर का शरीर देगा। और कभी कभी बोलते हम इच्छा करते, ओ मुझे बहुत खाना है, कुछ भी खा लेता हूं, मुझे डोंट कुछ एंजॉय करो, जस्ट ईट एनीथिंग एनीथिंग। तो हम ये मनुष्य शरीर के भौतिक नेचर के सामने हम पूछ रहे हैं कि हमें एक ऐसा शरीर दो, सिर्फ वो खाते ही रहेगा, कुछ भी खाए, तो तभी नेचर है ना, आपने पूछा, सी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर आपने पूछा वैसा शरीर चाहिए, तो वो सुअर का शरीर मिल जाता है। कुछ भी खाना है ना तो मलमूत्र भी खाते रहो। और कभी कभी बोलते अरे जस्ट एंजॉय, अरे जस्ट हैप्पी मेरी गो, अपने जैसे बोलते ना एंजॉय, जैसे मौज मजा करो। जैसे कभी कभी बोलते ना, हम बोलते कपड़ा पहनने का क्या जरूरत है, जस्ट जैसे पाश्चात्य देश में आप देखते हैं लोग निर्वस्त्र रह के ऐसे घूमते रहते हैं। तो इससे क्या हम बता दे, हम पूछ रहे हैं, मुझे हमें आई एम एंजॉयिंग, मनुष्य की मुझे ऐसा शरीर चाहिए। अच्छा तुमको ऐसा शरीर चाहिए ना कि निर्वस्त्र, तो हमें पेड़ का शरीर मिल जाता है। क्यों ऐसा, वाई? क्योंकि मनुष्य जीवन इज नॉट मेंट फॉर ऑल दिस थिंग्स। ये सब करना ही है तो मनुष्य शरीर उसके लिए नहीं है। तपो दिव्य पुत्र के सत्वम अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये जंक्शन है, ह्यूमन लाइफ इज अ जंक्शन। आपको जंक्शन पता है, 4 रास्ता रहता है, उसको जंक्शन बोलते हैं। एक रास्ता नॉर्थ में जाता है, साउथ में जाता है, ईस्ट में जाता है, वेस्ट में जाता है। तो जंक्शन मतलब अभी आपको चॉइस है, आपको चॉइस दिया गया, आपको किस तरफ जाना है, आपको नरक के तरफ जाना है या स्वर्ग की तरफ जाना है या गोलोक की तरफ जाना है या पशु पक्षियों के तरफ। इट्स अ जंक्शन। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये
बहुत दुर्लभ से मिलता है। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल 84 लाख वन गेट्स अ चांस। ओके, तुमने फेरा हो गया, नाउ कम टू दिस पॉइंट, अभी मनुष्य शरीर, नाउ आस्क, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ यू टू आस्क, ये क्यों मिला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मनुष्य शरीर का इंपॉर्टेंस आपको अपने आपको बताता हो, हाउ मच इंपॉर्टेंट, उदाहरण इतना क्यों दिया है। बोलते ना, आपको पता है हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल। उसको कोई ऐसे कोई रास्ते पे चला नहीं सकता है, उसका एयर डोम ही अलग रहता है उड़ा के। और पर्पस क्या है हवाई जहाज का, रास्ते पे जाना, फ्लाइंग हाई, यू फ्लाई हाई। अगर सपोज उसको हवाई जहाज का पूरा एज मिला, लाइसेंस मिल गया, वो सब लिया, और वो हवाई जहाज वाला पायलट अगर वो हवाई जहाज को एयर डोम में घुमाने से पहले पूरा घुमा के सीधा इधर वृंदावन सोसाइटी के उधर लेके आया, तो क्या होने वाला है। अरे हंसते में, अरे खियोटिक, पहला बात तो इतना जोर से आवाज और पूरा बिल्डिंग सब टूट गया, सभी पूरा इमरजेंसी, उसको रोको, हु इज दिस पर्सन, फर्स्ट कैच इट। और क्या हुआ, इट्स माय फ्लाइट, माय फ्लाइट, मेरा हवाई, अच्छा हवाई जहाज, तुम हवाई जहाज रास्ते में घुमाने के लिए, यू डोंट इवन नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हवाई जहाज। हवाई जहाज उड़ाने के लिए रहता है, देन यू आर नॉट फिट, कैंसिल हिज लाइसेंस, गिव हिम सम स्कूटर और बाइसाइकिल। सेम वे मनुष्य शरीर होके भी अगर हम कुत्ते बिल्ली के जैसे रास्ते पे चलाएंगे ना, लॉ नेचर डजंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ, खाना पीना सोना मैथुन करना, वी आर ऑर्डरिंग अ बॉडी, जस्ट हैविंग अ मैरी-गो, ऑपोजिट सेक्स, अरे अच्छे से बंदर बन जाओ ना, हैविंग अ फीमेल एसोसिएशन, अच्छे से बंदर बन जाओ। अरे मुझे पता नहीं था, पता नहीं, यू हैव टू फाइंड इट आउट। बुद्धि है, इट इज आवर चॉइस, प्रॉपर क्लियरली बताते ये हमारा चॉइस है। मनुष्य जीवन होकर हम हमारे कार्य से हर मोमेंट में हमारा चॉइस है, व्हाट यू चूज। ये सिंपल एग्जांपल है, मनुष्य जीवन में बुद्धि रखा हुआ है। कोई ये नहीं बोलता मुझे पता नहीं था, यू आर सपोज टू इंक्वायर। अगर बोलते ना दूध का बॉटल और विष का बॉटल में, तो किसी को पता चलेगा, कोई बोलेगा मुझे पता नहीं था, वो मैं सोचा ये अच्छा लगेगा। इंटेलिजेंस इज गिवन, इंटेलिजेंस है। उसी तरह बाकी कोई पशु पक्षियों में अगर हम कुछ किए तो उसको कोई रिएक्शन नहीं है, बट ह्यूमन लाइफ में अगर हम लोग ने कुछ गलती किया तो देन यू आर प्रोन टू ट्रैवल अराउंड 84 लाख में घूमना पड़ता है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इट्स सो रेस्पॉन्सिबल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग जैसे, अगर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग के पास चॉइस था, आप लोग के पास चॉइस है। मंगलवार कार्यक्रम में हर मंगलवार में आके इधर वृंदावन चंद्र दास या श्रीनिवास आचार्य प्रभु या हलधर राम प्रभु या दामोदर सर, उन लोग रोज वही तो बता रहे, आप लोगों का चॉइस है कि घर पे बैठ के टीवी देख सकते थे ना, चॉइस है, पर क्यों आपने सिलेक्ट किया? नो, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के अच्छा उदाहरण देते हैं कि देखिए, एक्चुअली हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, ये भगवान ने एकदम पक्षपात किए, क्यों मुझे ऐसा सब कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं था ना, मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली हम ये भूल जाते कि हमारा चॉइस से हमें ये शरीर मिला है। एक बार मिलने के बाद उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, नहीं मुझे नहीं चाहिए था, मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयरपोर्ट में जाके आप अमेरिका के लिए फ्लाइट लिए, वो आपका चॉइस था, अमेरिका का टिकट, और हवाई जहाज में ऊपर चढ़ने के बाद आप बाजू के फ्लाइट टिकट बोले मुझे उसमें जाना है, isn't that you can go? No, आपने चूज किया, आपको मिलना ही है। उसी तरह बाकी प्राणी पक्षियों में दे आर फोर्स्ड, पर मनुष्य जीवन में उसको चॉइस देने का चांस, इंडिपेंडेंस है। नितिन बाबू ने पता, यू आर गॉट एन इंडिपेंडेंस, यही इंडिपेंडेंस है, आपको चॉइस है।
बुरा करना या अच्छा करना ये आपके पास चॉइस। कोई आपको जबरदस्ती कोई नहीं करता है, ये खाना ही पड़ेगा, नो आई गॉट टू रिएक्शन, ये कार्य करना ही पड़ेगा, नो। आप बोलते 4 नियम को आपको तोड़ना है या उसको पालन करना है, ये हमारा चॉइस है, क्योंकि पता है उसका अगर करने से हमारा क्या हमें फल मिलेगा और ना करने से क्या फल मिलता है, ये बुद्धि है। तो चॉइस इज आवर्स। वो चूज करने के बाद हम दूसरे को बोल नहीं सकते वो मुझे दबाया गया था, मुझे जबरदस्ती दिया गया। इट इज इंडिपेंडेंस हर मोमेंट में। इसलिए प्रॉपर बोलते एवरी मोमेंट पर्सन शुड बी थिंकिंग। इसलिए एक्चुअली कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु जी आप इतना क्यों सोचते हो, इतना सोचने की कोई जरूरत है। आप लोग हरे कृष्ण वाले बहुत सोचते हो, करूं या ना करूं, इतना सब सोचने से आप मतलब पागल हो जाएंगे। अरे जो जिंदगी दिया है यार, वो कभी कभी ऐसे बोलते सब लोग जीते रहो, उसमें क्या हो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अरे जो मिला यार ठीक है, अच्छा करना चाहिए, मतलब बुरा नहीं करना, बाकी तो करो ना, जीवन दिया है ना। एक्चुअली प्रॉपर बताते हैं मेजॉरिटी लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है मेहनत करना, वर्क हार्ड। अरे मेहनत करते रहो, पूरा ये सब अलग अलग विचार नहीं आता है, वो मेहनत नहीं करता ये सब अलग है। जस्ट वर्क हार्ड, जस्ट बी बिजी। अ बिजी बी डजंट हैव टाइम टू वरी। बहुत अच्छा वाक्य है, एंड इट इज ट्रू। पर एक्चुअली अगर मनुष्य जीवन मेहनत करने के लिए है तो हम में और गधे में क्या फर्क है? People proper clearly mentions the biggest misconcept is लोग समझते हैं कि अरे मेहनत करो यार, जीवन में बड़ा तो मेहनत कर लो और कुछ बन के बताओ, ये सब हरे के शक्ल से कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत करो, बी समथिंग fruitful in your life, practical, be some contribution to the society, very good. All these things are parasites. एक्चुअली यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है। इसलिए प्रॉपर बताते, कभी कभी हम देखते हैं ना गाड़ी एकदम तेज जाता है ना, एकदम फास्ट, तो तभी आप नजारे को उसका गुणगान कर सकते, मतलब उसकी सौंदर्य देख सकते हो। मतलब एकदम फास्ट जा रहा है तो आप पता नहीं कुछ, पर अगर आप एकदम थोड़ा स्लो हो जाते हो तो तभी पूरा इस दुनिया का सौंदर्य पता चलता है। देयर इज ट्रीज, देयर आर दिस, देयर आर ब्यूटीफुल रिवर्स। उसी तरह हम इतने उलझे हुए अपने काम काज में कि हम ये भूल चुके हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। यही जीवन है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपना परिवार को संभालना। परिवार को संभालना ये है, ये तुम्हारा धर्म है, राइट। पर परिवार किसके लिए और क्यों करना चाहिए और किस भावना से करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। प्रॉपर ये हरे कृष्ण आंदोलन ये नहीं बता रहे कि आप लोग इररेस्पॉन्सिबल बनो। अरे ये सब छोड़ो, कल से निकल के अपना बोलते ना भगवान ड्रेस पहनो और सब घर संसार छोड़ो और भगवान का जाप करते रहो। नो, दिस इज नॉट एन इम्प्रैक्टिकल एडवाइस। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते, अर्जुना भगवत गीता ही उदाहरण है। इज हरे कृष्ण एन इररेस्पॉन्सिबल सोसाइटी? नो, भगवत गीता में कृष्ण स्वयं बताते अर्जुन को, वो जो युद्ध नहीं करना चाहता था, कृष्ण से यू शुड फाइट। तुम क्षत्रिय हो, एक गृहस्थ हो, तुम्हारा ड्यूटी करना चाहिए। तो वो बोला था मैं संन्यास लूंगा, चले जाता हूं, ये सब क्यों ये मार? नो, दिस इज नॉट द वे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। ये पूरा कृष्ण कॉन्शियस का उद्देश्य क्या है? तुम किसके लिए कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ये कभी आ जाता है जब हम थोड़ा समय, थोड़ा फुल स्टॉप देना पड़ता है। जस्ट वेट। सब लोग भाग रहे इसलिए भाग रहा हूं, ये सब लोग मेहनत कर रहे इसलिए मेहनत कर रहा हूं, ये किसके लिए कर रहा हूं? लेट मी वेट। क्या यही उद्देश्य है जीवन का? ये पर्पस ऑफ लाइफ इज दिस। हमारे जो रामायण जो लिखे थे ना वाल्मीकि मुनि, आपको पता है हर मंगलवार जब श्रीनिवास को बताते हैं तो बताते ना, वाल्मीकि मुनि का भी सोच यही था। उनका नाम रत्नाकर था, वो एक बड़े डकायत थे और उनका उद्देश्य यही था
कैसे भी पैसा कमाओ, अपना परिवार को संभालो। तो नारद मुनि और वो एक बार मिले, बाकी एक संग, तो बोले क्या कर, वो साधु को भी छोड़ नहीं रहा था। तो उन्होंने पूछा क्यों कर रहे हो? अरे मेरा धर्म है, मैं बीवी बच्चे को पालन कर रहा हूँ, बीवी बच्चे पालन करने के लिए ये करना पड़ता है। हाँ, किसी तरह मैं गृहस्थ को बीवी बच्चे को पालना मेरा कर्तव्य है। तो उन्हें पूछा जाके पहले बीवी बच्चे से तो पूछो, जो तुम पाप कर रहे हो उसके लिए भागीदार लेंगे। मुझे 110% क्यों नहीं, पूछ के तो आओ। तो जब भी वो जाके पूछता है, मैं जो तुम्हें पालने के लिए पैसा लेके आ रहा हो, कमा रहा हो, उसमें पाप है, उसका भागीदार तुम रहोगे ना। भागीदार पाप का क्यों हम रहेंगे? ये तुम्हारा फर्ज है, तुम हमें पालने के लिए, हमें क्यों क्या जरूरत है तुम्हारा पाप लेना? तो तुमने याद नहीं लिया, आपको क्या जरूरत है? दैट इज योर ड्यूटी। यस। देखिए कभी कभी हम सोचते हैं जीवन का उद्देश्य यही है, सुबह उठना, थोड़ा स्टडीज करना, उसके बाद एकेडमिक्स करना, उसके बाद शादी करना, उसके बाद फैमिली करना, उसके बाद बच्चे पैदा करना और उनके फैमिली को रक्षा करना, एक 3 बेडरूम हॉल किचन लेना और उसके बाद उसको सेटल करना, IIT क्रैक करना, उसके बाद उसका परिवार करना। पर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स? कभी हम सोचते हैं क्या इज दिस द प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ? क्या इसके लिए हम लोग कर रहे हैं? कैन देयर बी समथिंग एल्स फॉर ह्यूमन लाइफ? ये कोई सोचता नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं बोल के हम भी कर रहे हैं। ये चॉइस के वजह से हमें 84 लाख में जाना पड़ता है। इसलिए बताते हैं भक्ति, यहां पे देखिए इतने सारे थाने में very few people have taken to Krishna consciousness. It is your choice. बाकी 108 मतलब 108 बिल्डिंग है, इतने साल से प्रोग्राम चल रहा है, बट बहुत इट्स वेरी रेयर। बोलते ना बहुत ही कम लोग इस कृष्ण भक्ति को लेते हैं। वो हमारा चॉइस है, जैसे हम लेते हैं उसके ऊपर है। तो उसी तरह प्रभुपाद बताते हैं क्या हमारा चॉइस को कैसे ये करना चाहिए, वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए। वो एक साधु के मुख से जब हम सुनते हैं, इसलिए बोलते ना लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये हमारा चॉइस हम कैसे लेते हैं। आप लोग आए, आपको पता है श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना विदुनोति सोत्सताम हृदयंतोस्तभद्राणि विदुनोति सोत्सताम। आपको पता है आज मैं कुछ अलग कहानी नहीं बोलूंगा, यही चैप्टर जो बोलूंगा हम शरीर नहीं हुआ, फिर भी आप लोग आए हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपने चूज किया है कि भक्तों के संग में जब हम सुनते हैं तो तभी हमारा शुद्धिकरण होगा। यह हमारा चॉइस है, हमने चूज किया है कि नो साधु लोग हैं, थोड़े लोग हैं जो कृष्ण भक्ति के बारे में सुनते हैं। जब ऐसे साधु के संग में जब आते हैं तो बोलते हैं लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होवे। Just coming in the association with devotees, one gets purified. Are you watching me? I'm just बोलते जा रहा हूँ because maybe our choice है उसने watch लिया। Okay, मैं ज्यादा लंबा खींचता नहीं और आधा का पीछे देखना, बैटरी गया होगा। तो लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सिर्फ लवमात्र से ये दिस पावर। इसमें एक मैं आपको एक अच्छा ये उदाहरण देता हूं कि हाउ एक साधु कितना कृपालु रहता है और एक व्यक्ति की जैसे उसने मनुष्य शरीर लिया है पर उसके चॉइस की वजह से बाकी लोगों को उद्धार के लिए देखता है। इसे मैं बोला ना आप लोग का चॉइस था कि आप लोग बैठ कर फिर भी आप लोग आए बिकॉज यू नो एक ना एक दिन ये शुद्धि होगा। rather than आप लोग बाकी भौतिक कार्य भी कर सकते थे बट यू प्रेफर्ड नो लेट मी कम होप अगेंस्ट होप वन डे आई बिकम अ प्योर डिवोटी। ये हमारा उद्देश्य है। आप लोग ने कितने लोग ने हरिदास ठाकुर का नाम सुना है? हरिदास ठाकुर, वेरी गुड, आप लोगों को पता है हरिदास ठाकुर कौन थे?
नामाचार्य हरिदास ठाकुर 500 years बैक, 500 साल पहले। बता देना, वो सिर्फ आज जो हम महामंत्र कर रहे हैं वो नामाचार्य थे, नामाचार्य। हरे कृष्ण महामंत्र, हालांकि मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनको पता चला मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू जस्ट गेट बैक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए हालांकि मुसलमान परिवार में जन्म होने के बाद भी वो कृष्ण भक्ति प्रचार कर रहे थे। तो जब बोलते ना कभी कभी भक्ति में प्रचन या प्रवचन करते या प्रचार करते हैं तो तभी बाकी चीज भी आ जाता है, ख्याति, फेमस एंड एवरीथिंग। तो सभी लोगों को पता चला मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी बड़े महासंत पुरुष बने हैं, क्योंकि म्लेच्छ परिवार में जन्म होने के बाद भी सनातन धर्म को लेना मतलब बड़ी बात है। तो पूरे बोलते ना उस बेनापोल जगह पे, वो बांग्लादेश में थे उन्होंने, तो वहां पे पूरा फैल गया ठाकुर हरिदास बड़े महान भक्त थे, महान भक्त है। तो वहां पे बोलते ना जैसे दूसरे की बोलते ना दूसरे की प्रशंसा होता है तो दूसरे व्यक्ति को इनसिक्योरिटी हो जाता है। इनसिक्योरिटी मतलब ना एक टक्कर का व्यक्ति आ गया तो बोलते यार ये मेरा दुकान बंद हो जाएगा। उसी तरह वहां पे उस जगह पे एक रामचंद्र खान बोल के एक व्यक्ति था, रामचंद्र खान। वो सोचा यार ये अभी अभी आया नवयुवक और मुसलमान परिवार में जब आज से वो हरिनाम कर रहा है तो पूरा गांव को पूरा उसको साधु मान गया, बड़ा साधु है। मुंह में राम का नाम बगल में छू अभी बता था उसको। जैसे आप लोग ने ये अपने जो तुकाराम महाराज आप लोग जानते हैं, उनका एक पिक्चर आया था, आपको पता है? संतोष, जिसने देखा होगा, बिकॉज आई सॉ इट। उसमें जैसे तुकाराम महाराज फेमस हुए थे तो तभी उनके सामने एक दूसरा एक सारू माधव बोल के एक व्यक्ति था। He started feeling insecure। अरे यार ये कौन है, ढोंगियों का सर। तो वैसे ही ये हरिदास ठाकुर जब फेमस हो रहे थे तो रामचंद्र खान इसको बहुत ये यार ये कौन है, मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ, लोगों को खाना खिला, तो ये कौन है, पूरा मेरा क्राउड वो लेके जा रहा है। कभी कभी बोलते ना अरे इधर का क्राउड उधर कैसे जा रहा है, इधर आना चाहिए, वोट बैंक की उधर कैसे जा रहा है, अभी बताता उसको, अभी बताता। तो बोलते ना मेजॉरिटी लोग है ना, किसका भी बता दे, किसको मतलब उसको एक्सपोज करना है ना, एक्सपोज करने के लिए अभी बता दो। ये लोग बड़ा उसको संत समझते, तो उन लोग आजकल एक वर्ड आता है, उसको फंसाने के लिए एक हनी ट्रैप डालते हैं। हनी ट्रैप, हनी ट्रैप आप लोगों को पता है? व्हाट इज हनी ट्रैप? हनी ट्रैप आपको पता है? जो इंद्रदेव जब कोई संत महापुरुष विश्वामित्र या तपस्या करते तो कोई अप्सरा को भेजते, दैट इज कॉल्ड हनी ट्रैप। अभी पता चलता है ये दूध का दूध कितना है, पानी का पानी कितना है। तो उसी तरह बेनापोल में हरिदास ठाकुर भगवान का बोलते ना 192 राउंड्स रोज जाप करते थे और उनको कोई लेन देन नहीं था, कौन ख्याति कौन फेम ये सब, उसको उनको कोई लेन देन नहीं था। He was just chanting। लोग अपने आप आते थे and used to just propagate the holy name। तो ये बोला चलो आज दिखा था इसको। तो उसके पास उतना पहुंचता है कि he selected the best, सबसे बहुत ही सौंदर्य एक वैश्य को, प्रोस्टिट्यूट, उसको सिलेक्ट किया, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग। तो उसको बोला जाओ और ये जो हरिदास को उसका पतन करो, उसका कैसे भी पतन करो, संभोग से उसका पतन करो। अभी ठाकुर हरिदास वो कोई बोलते ना घर बार में उनका कोई ये नहीं था, उनका कोई भजन नहीं था। वो एक जंगल में बैठ के, एक खीव में गुफा में बैठ के तुलसी महारानी रख के वो नाम जाप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनका ऐसा था 192 राउंड्स वो कंटिन्यूसली चालू रहता था। आपको पता है 22 घंटा जाता है और 2 घंटा ही रहता है। जो ट्राई किए 192 राउंड्स 22 आवर्स
तो उनका कभी बोलते ना, हम लोग का 16 माला करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रात को 10 बजे, क्या वो प्रभु जी? हाँ प्रभु, राउंड्स नहीं हुआ है। हरिदास ठाकुर का यही था, जब भी कोई आते थे, क्या हुआ हरिदास? नहीं, मेरा जाप हुआ नहीं है। उनका राउंड्स इज ऑलवेज गोइंग ऑन। हरिदास ठाकुर वाज लाइक दैट कंटिन्यूअसली। तो जब ये वैश्य आती है, उसको बोलता जाके संभोग करो, और मेरे आदमी है दैट हनी ट्रैप, उसको पकड़ के ठाकुर हरिदास वाज जस्ट चैंटिंग। तो ये जब माता जो आती है वैश्य, वो बोलते हैं हरिदास तुम इतने बड़े नवयुवक हो, नौजवान, और मैं इतनी नवयुवक, और ये बोलते ना ऐसी रात में कोई है ही जंगल के प्रवाह में, हम दोनों क्यों ना मुझे मेरी काम वासना को संपूर्ण कर दो, तृप्ति कर दो। तो उस समय देखिए यहाँ पे हरिदास ठाकुर का चॉइस था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ही हैड अ चॉइस। वो बोल सकते थे कि मैं ये सब नहीं करता हूं, क्यों आपने, और उनके पास ये भी चॉइस था कि क्या बहुत अच्छा है, कोई है ही नहीं। नाउ दिस इज अ चॉइस, आइदर ही कुड हैव टेकन और आइदर ही कुड हैव रिजेक्टेड। पर उन्होंने क्या बोला? What did he say? Did Haridas Thakur say no or did Haridas Thakur say yes? What is the true choice? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला yes, मैं आपका संपूर्ण करूंगा, आपकी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करूंगा, पर प्रॉब्लम क्या है? मेरा राउंड्स बाकी है। Let me finish my job, मेरा जॉब करने दो, तब तक आप यहां पे बैठो। आई एश्योर यू आई फुलफिल योर डिजायर। देखिए उत्तम है, मैं आपका जो इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा, हैव फेथ, मैं करूंगा, पर मेरा जॉब है, जैसे मेरा जॉब हो जाएगा मैं आपका पूर्ण करूंगा। आप बैठो, यहां पे बैठिए। और वो जगह पे हरिदास ठाकुर वाज चैंटिंग। देखिए मैं तभी आपको एक शब्द बोला, साधु संग सर्वशास्त्र गाए, लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। आप लोग का चॉइस है इस सभा में आने के लिए, बिकॉज यू नो दैट साधु के संग में आपका शुद्धिकरण। दिस लेडी ये बैठ गई और हरिदास ठाकुर स्टार्टेड चैंटिंग। अब हरिदास ठाकुर का जो जाप है, आज का जाप है, वो उनके लिए नहीं है, वो इस व्यक्ति के लिए है, इस व्यक्ति के लिए है। देखिए, hate the sin, not the sinner। वो पाप को नकारना चाहिए, पापी को नहीं। He saw the soul, वो अंतरात्मा को, जीवात्मा को देखिए, वो वैश्य हो या औरत हो या that is not important। He saw the soul and he started chanting। और ये वैश्य सुन रही है, वही होप में खत्म तो होगा ना, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3। हरिदास kept on chanting, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये सुनते 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 सूर्योदय हो गया। अभी जो भी पाप का कार्य हो रात को होता है, सूर्योदय के समय ब्रह्म होते, तो एकदम डिसअपॉइंटेड हुए। तभी हरिदास ठाकुर बोले, सॉरी देवी, मैं आज पूर्ण नहीं किया, डोंट वरी, डोंट गेट डिस्करेज, कम टुमारो, कल मेरा जाप होगा ही होगा, प्लीज। तो ये कितना खुश हो गई, लगता है हरिदास को ज्यादा इच्छा मेरे साथ सब 100% में आती हूँ, आ जाओ। ही वॉज वेटिंग। दूसरे दिन वापस आ जाती है, वापस इसे आज होना ही होना, आज मैं आपका करूंगा, आपका जो इच्छा है यू जस्ट सिट हियर एंड जस्ट हियर द होली नेम, जस्ट हियर। देखिए महामंत्र से सुनने में, आपके सामने, जब आपके सामने आप जाते हैं, क्या वो देखता है वो बच्चा है, अरे बच्चा है, मैं नहीं जानता, कोई भी हो, एनीवन, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या औरत हो, आज अपना गर्मी और उसकी नेचर को वो जला देता है। उसी तरह महामंत्र कृष्ण की ऐसा पावर है
It doesn't see ये पापी है, ये औरत है, ये वैश्य है, ये बच्चा है. Even a child can become a pure devotee. Just by hearing, वो सुनते सुनते हरिदास ठाकुर के नाम जाप सुनते सुनते whole second day वो सुन रही है और अगेन सूर्योदय हो जाता है और तब हरिदास आई एम रियली सॉरी, पर लास्ट एश्योरेंस, कल मैं करना ही करना, आपका जो इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा ही, आप आ ही जाओ प्लीज. हरिदास ठाकुर बोले यू कम. देखिए हरिदास ठाकुर की जो इच्छा है इस वैश्य की जो इच्छा से ज्यादा है. Haridas Thakur's desire to make her a pure devotee was much greater than the prostitute's desire to dismantle Haridas. उनकी इच्छा था ये व्यक्ति को मैं भक्त बना के रहूंगा. मेरे को तो तीसरा दिन जब आती है तो मुझे प्लीज आज तो होगा ही ना, मुझे होगा, आज मेरा राउंड होगा. और तब वो जाप करती है. अभी मैं बताता हूं उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. 2 दिन सिर्फ उसने श्रवण किया, तीसरा दिन she started chanting. हरिदास ठाकुर के साथ वो जाप करने लगी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. वो जाप करने लगी. वो जाप करते करते सोच लीजिए हरिदास ठाकुर के साथ जाप, भगवान का एक नाम अगर शुद्धि पूर्वक हम बुलाएंगे, शुद्ध बोलते ना, पाप जो हम सोचते भी नहीं वो पाप भी मिट जाता है. भगवान का एक नाम हमारे पाप करने की प्रवृत्ति को निकाल देता है. और ये जो औरत जो कर रही है हरिदास ठाकुर के साथ महामंत्र करते 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 करते, मैं जैसे बताया वो पाप करने की प्रवृत्ति को चलाती है. और जैसे सूर्य उदय हो जाता है she starts crying. वो रोने लगती है. ठाकुर महाशय मैं पापी हूं. मैं ये इसके लिए नहीं रो रही कि आप आज मेरे काम वासना को पूर्ण नहीं कर रहे. मुझे ये दुख हो रहा है कि मैं किस भावना से आई थी आपका पतन करने के लिए. तभी हरिदास ठाकुर बताते, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सुनिए. हरिदास ठाकुर को पता था, बोले पहली दिन जब तुम आए थे मुझे पता था कि तुम मेरे भक्ति के मार्ग में पतन के लिए ही आए हो. पर मैं किसके लिए रुका? सिर्फ आपका उद्धार करने के लिए. जस्ट टू अपलिफ्ट यू. मेरे एक ही दिन में मैं चले जा सकता था, बट जस्ट आई वेटेड. क्योंकि मैंने तुम्हारा शरीर नहीं तुम्हारा आत्मा देखा है. तो तभी एकदम दंडवत बोल के बोलते मुझे उद्धार करो, मुझे उद्धार कीजिए. तभी हरिदास ठाकुर बोलते, लिसन नाउ दिस इज योर चॉइस. अगर तुम सचमुच अपना पाप की प्रवृत्ति नाश करना चाहते हो तो उस जो कार्य है उसको छोड़ दो और इधर आके जाप करना चालू करो. नाउ इट इज योर चॉइस. जो तुम्हें करना है तो बोले आई एम रेडी. तो जो दौलत तुमने इकट्ठा किया है वो सब उसको उठा के दे दो. गिव अप एवरीथिंग, सब दे दो. जो तुमने ये पाप की प्रवृत्ति से कमाया उसको सब दे दो, दान धर्म कर दो और तुम आ जाओ यहां पे. बोले सब कुछ? यस, सब कुछ. ये चॉइस है तुम्हारा. तुम सिर्फ ये जाप करो. और वही औरत वैश्य जो दौलत है वो पूरा उठा के सबको देती है और आके बोले हरिदास जी अभी बताएं मुझे क्या करना चाहिए. बोलते
यही जगह पे यहाँ पे तुम आपसे बैठो और नाम जप करो, और मैं इसके लिए रुका था, अब से मैं यहां से चले जाता हूं। आई हैव डन माई ड्यूटी। मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से रुका था। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। और वही औरत उतना विश्वास लेके और जाप, देखिए ये चॉइस था, उसको विश्वास है मेरे गुरु के आज्ञा है, मैं करूंगी। और जब पूरे गांव में पता चलता है ये कौन भक्त बना है, ये वो वैश्य, दैट प्रोस्टिट्यूट, शी बिकेम अ डिवोटी, शी बिकेम अ डिवोटी, वो भक्त बने। सब लोग आने लगे क्योंकि उसका कार्य क्या था और क्या बन गया। और उससे वजह क्या हुआ, हरिदास ठाकुर की ख्याति और बढ़ गई। जो व्यक्ति उसको गिराना चाहता था, ये तो मैं उल्टा ही हो गया, भारत के लोगों में चली गया। मैं चाहता था हरिदास को हनी ट्रैप में डाले, तो हरिदास और बढ़ गया। क्योंकि देखिए उद्देश्य क्या था, हरिदास ठाकुर वो हनी ट्रैप में फंसे या ना फंसे वो उनका उद्देश्य नहीं था। द मेन पर्पस वाज टू अपलिफ्ट द पर्सन, लिविंग एंटिटी। वो शरीर नहीं देखे, ही सॉ द लिविंग एंटिटी। कल मुझे ख्याति होगा उसके लिए हरिदास ठाकुर नहीं बैठे, ही जस्ट वांटेड टू सेव दैट लिविंग एंटिटी। और वो जब वो माता वो जाप करने लगी, आज भी वो जगह है, सभी लोग आके उसको दंडवत दे, उनको अरे वो तो सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के आए, सब लोग आके उनको रोज मिलते थे, थोड़ा प्रवचन बताइए, दान। जब भी साधु के साथ आते तो कुछ तो फल फूल या जो भी लेके आते, अन्न ये सब लाके उनको तो साधु को देना चाहिए, वो तो मधुकरी करता है। तो तभी पता चला बाकी सभी कार्य चलेगा जब भगवान का नाम जप होता है। यू डोंट हैव टू एंडेवर। इसलिए प्रॉपर बताते पीपल हैव दैट कांसेप्ट यू शुड वर्क हार्ड। ये नहीं बोलता कल से आप लोग भी सब छोड़ के कर, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्किंग, ये हमारा चॉइस है। देखिए यहाँ पे ये स्टोरी बताने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस। जब हमारे पास वो चॉइस है वेदर आई शुड कमिट सिन और आई शुड नॉट कमिट सिन, भगवान हमें चॉइस देते, हमें ये हर मोमेंट में हमें वो दिया जाता है, यू वांट टू सी और यू डोंट वांट टू सी, ये आपका चॉइस है। ये भक्ति में प्रगति करना है या ना करना है वो हमारी प्रगति है। हम अगर सिलेक्ट किए then you will get the result। उसी तरह ऐसे भक्तों के साथ जब हम संग करते, इसलिए प्रॉपर लास्ट में तात्पर्य बताते हैं, one can get purified of all these things when a person associates with a person like सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित। ऐसे संग में जब हम आ जाते हैं, having faith, यहाँ कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा यज्ञ नहीं है, your consciousness is Krishna consciousness। We do the simple thing, just chanting, dancing and feasting। बाकी कुछ बड़ा ये बड़ा में कुछ मंत्र नहीं बोलने वाला या कोई ऐसा ये नहीं, क्योंकि अभी आपको कोई प्रॉब्लम, दैट इज ऑल टेम्पररी, इररिलेवेंट। द बिगेस्ट थिंग इज वन शुड डेवलप टेस्ट फॉर कृष्णा। तो यहाँ पे जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि आफ्टर गोइंग सो मेनी 84 लाख योनि में अभी हमें मिला हुआ चॉइस, वो चॉइस हमें कैसे उसका सदुपयोग करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हरिदास ठाकुर के बता दें उदाहरण से हमें पता चलता है, ये हमें कॉन्स्टेंटली सुनते रहना चाहिए। जब हम भक्तों के साथ जब आते, जैसे मैं जब आया तो मिथिल को बोले थैंक यू वेरी मच प्रभु कमिंग ऑल द वे टू कुर्ला। अभी मेरे पास चॉइस था, मैं आज भी दामोदर सखा को बोलता हूँ प्रभु जी मैं नहीं आ रहा हूँ कोई दूसरे, बट इट इज माई चॉइस वेदर आई वॉन्ट टू गेट प्यूरिफाइड और नॉट। ये मेरी शुद्धिकरण के लिए मैं आ रहा हूँ, मैं बड़ा मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। आज मैं ये प्रवचन दिया, इट इज टू कन्विंस माई ओन सेल्फ दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। अभी मनुष्य जीवन को सीरियसली लेना चाहिए, ये हमारा चॉइस है। और जब ऐसे भक्तों के संग में जब हम आ जाते हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली उसको याद करते रहना पड़ता है। और तभी बोलते ना, हैबिट इज फॉर्म नॉट इन वन डे,
कॉन्स्टेंटली व्हेन यू आर डूइंग इट रेगुलरली, एक बार परसों एक वक्त पूछ रहे थे उससे, प्रभु ये बोर नहीं होता है आप लोग इतने टाइम से वही करते हो, वही फिलॉसफी बोल रहे हो, I am not this body, I am the spirit soul, I am not even going to follow the four regulatory chanting 6 kilo, nothing, something variety. इसलिए बोलते ना वैरायटी, बोलते ना लोग कुछ और एक नया ये लिखे आ जाओगा, कुछ ताजगी या कुछ भी समथिंग डिफरेंट. फिलॉसफी सेम, प्रॉब्लम उधर नहीं, प्रॉब्लम अंतरात्मा में. व्हेन वी गेट प्यूरिफाइड, वही महामंत्र हमेशा बोलते ना, यू रिलिश इट, वही हरे कृष्ण प्रोसेस, देन यू रिलिश इट. सिर्फ हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और ऑटोमेटिकली वन डे वी विल डेवलप द टेस्ट फॉर कृष्ण. हरे कृष्ण. किसी का हालांकि सब्जेक्ट और किसी का कोई प्रश्न या हम अभिजीत को यू वांट टू से समथिंग, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण.